Hi, hello everyone. Welcome to today's session of Certified Ethical Hacking. I hope you're able to hear me and able to see the screen. Okay, so in the last session, we discussed about malware threats. Okay, and I gave few assignment to every one of you to try out the virus maker and the worm maker. So I guess you tried that out. So anyone having any questions or queries from that, let me know. किसी को doubt कोई query है malware threats में से, so you can ask in the live chat, or else we'll proceed with our next topic, which is sniffing. Let me know quickly. Okay, so basically let's start with the sniffing. How to use Recon Spider. Recon Spider, where did you find out the Recon Spider in the module? Okay, so you can ask this question after we finish out this particular session. You can ask that time. Okay, or you can just ping me on the Telegram. Basically, it's a Linux-based tool. Actually, it's totally different stuff. It's used to gather open source information of organizations, like their email addresses, IP addresses, uh, employee details, and all. So, as you know, reconnaissance means gathering information. So, Recon Spider is used to gather information about such companies or employees or entities, and it's a Linux-based tool. So, if you are asking like how to use it, then basically it's very very simple. Like you can just install in the Parrot or Kali Linux, and you can just use the commands. You can find out the command on GitHub or, or on the repository of Recon Spider. It's quite easy. Okay, so let's proceed with sniffing. So, well, how many of you know about sniffing? What is sniffing? Anyone? Any idea what is sniffing? Anyone? Let me know quickly. Okay, so no one. Well, from the name itself, it is clear. Sniffing means smelling. Okay, like sniffing. हम लोगों ने बहुत जगह सुना होगा sniffing का मतलब क्या होता है. Like अगर if I search sniffing, what you see is draw up air audibly through the nose to detect a smell. Okay, मतलब कि smell करना and getting to find out that what exactly is the smell of, so which is generally performed by dogs or animals. They try to sniff something in the air and they try to detect it. Okay, like food, like that. So sniffing information security में क्या है? So इसका नाम basically technically ऐसे रखा नहीं गया है. इसका नाम बस इसी particular example पे रखा गया है, that to sniff something in the air. And in our case, in information security, that air is a network. ठीक है?
that air is a network and that smell is a data. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी पर्टिकुलर वाईफाई नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ कहीं भी, और मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ कुछ करने का, सपोज मैं कुछ ब्राउज कर रहा हूँ, मैं कहीं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, और कुछ भी आई एम डूइंग समथिंग ऑन द इंटरनेट with the connected in the wireless network, and that wireless network could be accessed by anyone, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. ठीक है, अगर पासवर्ड है तो सही है, अगर फ्री है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है. सपोज इन दैट वाईफाई नेटवर्क देयर आर 50 users connected and I don't know the other users, and I'm trying to browse something on the internet. So a hacker can easily connect with the same network. एक हैकर उस नेटवर्क में इजीली कनेक्ट होके स्निफिंग कर सकता है डेटा का. The hacker can easily perform sniffing in the network and they can try to fetch the data from your system. ठीक है, अगर आप I'm sure you might have used Wi-Fi's on airport, on railway station. आजकल तो aware that if the Wi-Fi network is, even if it is secure मतलब क्या होता है, बस पासवर्ड डाला हुआ है उसमें, और क्या. पासवर्ड आजकल हैक करना कोई बड़ा बात नहीं है. विल सी इन द वायरलेस नेटवर्क्स मॉड्यूल दैट हाउ टू हैक अ वाईफाई पासवर्ड. तो कुछ बड़ा बात नहीं है. सो एनीवन if they want they can easily connect with the wireless network, a hacker, and they can easily sniff your data. ठीक है, वो आप ही के नेटवर्क में कनेक्ट होके, एग्जांपल शो करता हूँ, वो आप ही के नेटवर्क में कनेक्ट होके आपके डेटा को स्निफ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो सिस्टम्स का एग्जांपल लेते हैं हम. ये है यूजर, ठीक है, और ये है सर्वर. किसी का भी हो सकता है. सपोज इफ यू आर यूजिंग फेसबुक और इफ यू आर यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज, देन वो सर्वर उसका हो गया. सो सपोज इफ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द सर्वर, अगर आप चाहो, अगर आप कुछ डेटा शेयर कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से होता है. डेटा जाता है, डेटा आता है. अब क्या हो सकता है कि एक ये बड़ा सा वायरलेस नेटवर्क है. ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा सा वायरलेस नेटवर्क है जहां पे और दूसरे यूजर्स भी कनेक्टेड है. ठीक है, इनको हम डिनोट कर देते हैं कुछ इस तरह से. यूजर एक और है, ये एक और यूजर, ये एक और यूजर, वन मोर, वन मोर. ठीक है, एंड यू डोंट नो कि ये लोग कौन है. बेसिकली इनका काम है, ये लोग भी अपना नेटवर्क यूज कर रहे हैं, एंड दे माइट बी आल्सो डूइंग सम काइंड ऑफ थिंग ऑन द इंटरनेट. वो भी किसी के सर्वर से कनेक्टेड होंगे. बट इनमें से कोई एक हो सकता है कि दूसरों के डेटा को रीड करे. ठीक है, सपोज ये और ये, दे कैन इजीली intercept in between. That is also known as man in the middle attack. MITM, man in the middle attack. So in this kind of attack, this user, this is a hacker. ये एक हैकर हो गया. ठीक है, ये एक हैकर हो गया. So this user can easily get into your net this connection as a man in the middle attack, and they can go through everything, whatever you are trying to share on the server and whatever you are getting back from the server. It might be your username, password, your transaction details, your credentials, credit card details, कुछ भी हो सकता है, कोई भी sensitive information हो सकता है. अगर वो encrypted है थोड़ा हार्ड होता है हैकर्स के लिए पता लगाना. अगर वो encrypted नहीं है तब तो बहुत इजी हो जाता है. That is known as sniffing. Clear to everyone? Yes, no? Sniffing clear है, concept क्या होता है sniffing का? Let me know. Okay, great. So this is what we'll be discussing about in sniffing. ठीक है, तो स्निफिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट्स. ठीक है,
क्या टेक्निक होता है स्निफिंग का, ठीक है, कैसे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, कौन से टूल्स यूज होते हैं स्निफिंग में, काउंटर मेजर्स क्या क्या लिया जाए और डिटेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, तो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, सेम चीज है, ठीक है। नेटवर्क स्निफिंग का मतलब यही होता है कि डेटा को स्निफ करना, और डेटा क्या होता है, पैकेट्स। सो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा जो है पैकेट्स के फॉर्म में अप डाउन होता है। अगर मैं यहाँ पे जूम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो जूम भी अपने सर्वर से कनेक्टेड है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, दैट इज अ VoIP कॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाउ एवरीथिंग इज प्रोसेसिंग थ्रू दी जूम सर्वर। मेरे लैपटॉप से पहले ये डेटा जो है पैकेट्स के फॉर्म में। अब पैकेट्स क्या होता है, एक तरह से पैकेट होता है जिसमें डेटा रहता है, जिसका एक साइज होता है 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, बिट्स, मेगाबाइट्स जो भी है, ठीक है। वो पहले जाता है जूम के सर्वर पे, वहां प्रोसेस होता है, देन आपके सिस्टम में आता है और आप उसको फिर यूज करते हो। ये जो पैकेट है ना, इसी पैकेट को स्निफ करना होता है स्निफिंग में, जिसको हम नेटवर्क स्निफिंग भी कहते हैं। तो यही पैकेट जो है डेटा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवीज डाउनलोड करते हो, यू डाउनलोड मूवीज फ्रॉम वेबसाइट्स, यू डाउनलोड ऑडियोज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स, फाइल्स, फोल्डर्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर, सबका एक साइज होता है, 1 GB, 2 GB, 3 GB। आप जब भी डाउनलोड करोगे ना, तो वो ऐसे नहीं होता है कि 1 GB एक बार में डाउनलोड हो जाता है, वो पैकेट्स में डाउनलोड होता है, ठीक है। एक एक पैकेट्स होता है, हर एक नेटवर्क का पैकेट होता है। तभी आप देखो कि जब भी डाउनलोड पॉज हो जाता है, जिस ब्राउजर में कैपेबिलिटी है, वो उसको पॉज के बाद अगर अगले दिन भी शुरू करो, वहीं से वो स्टार्ट कर देगा। क्यों? बिकॉज वो पैकेट्स में डाउनलोड हो रहा है। आई गेस यू माइट हैव हर्ड अबाउट इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, IDM। आईडीएम का भी कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है। नेटवर्क का तो काम रहता ही रहता है, प्लस वो भी क्या करता है, उसको अलग अलग पैकेट्स में डाउनलोड करता है। 1 GB का फाइल है तो उसको 10-10 MB के 100 बना देगा, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि वो पैकेट्स बन जाता है और डाउनलोड होने में बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। बीच में कभी नेटवर्क का इश्यू हुआ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में आके उसको कंपाइल कर देता है। दैट्स पैकेट। सो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये डायग्राम भी वही चीज दिखा रहा है जो मैं बताया। एक सर्वर है, इंटरनेट है, यूजर्स है, वो दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू द सर्वर, दे आर ट्राइंग टू ब्राउज द इंटरनेट, एंड देयर इज अ अटैकर सिटिंग इन बिटवीन एंड ट्राइंग टू लुक फॉर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो यही चीज होता है जो कि नॉर्मली बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लाइक यूजर लाइक यू एंड मी, वी ट्राई टू कनेक्ट, we might we try to connect to some network where we think that it's secure, क्योंकि वो पासवर्ड है उसमें, ठीक है। बट एक्चुअल में होता है क्या कि पासवर्ड किसी के पास अगर हो तो वो इजीली आपके नेटवर्क को स्निफ कर सकता है, ठीक है। इसीलिए एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या जहां भी फ्री में वाईफाई अवेलेबल हो, चाहे वो आपका नंबर वेरीफाई करके OTP ले या कुछ भी करे, क्योंकि आप तो पता लगा पाओगे नहीं कि किसने किया है, और कोई इतना जल्दी कंप्लेंट सुनता भी नहीं है कहीं पे करना चाहो आप तो you need one solution to protect yourself from these things. We'll see in the countermeasures that how to protect ourselves from these things and how to perform these activities also we'll see in the practical. Okay, this is the attacker. Smith और Lina, ये दो यूजर्स हैं, they are trying to pass their data, मे बी मेल सेंड कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सर्वर के थ्रू, और जो अटैकर है वो बस उस पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट होके वो बस जितना भी डेटा है वो कॉपी करने लग गया। यही होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो अब इसमें स्निफिंग में भी दो अलग अलग स्निफिंग होते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव, ठीक है। पैसिव क्या होता है, डायरेक्टली एक हब से कनेक्ट हो जाना। सपोज कि वी आर हैविंग वन वाईफाई नेटवर्क, वो वाईफाई नेटवर्क कैसे हुआ, ऑब्वियसली एक राउटर से होता है या हब से होता है। लैन में स्विच यूज किया जाता है। स्विच क्या होता है, एक बेसिकली एक बॉक्स टाइप का स्विच होता है जिसमें अलग अलग इथरनेट पोर्ट दिए रहते हैं, इथरनेट केबल कनेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा अपने कॉलेज या स्कूल के कंप्यूटर लैब में, you might have seen these kind of things in your computer lab, might like in your college or might be in your school. All those computers are connected with the help of a ethernet cable, ठीक है। तो पैसिव स्निफिंग में क्या होता है कि अटैकर tries to sniff the router or the hub डायरेक्टली। वो राउटर या तो हब को स्निफ करते हैं, बिकॉज वो राउटर और हब से बाकी सारे यूजर्स कनेक्टेड हो सकते हैं, 50 यूजर्स, 100 यूजर्स, 1000 यूजर्स। सो द अटैकर डोंट नीड टू कनेक्ट to each and every user to try that out, but they can connect to the hub directly or the router. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक
वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता हूँ, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, कहीं भी हो जो सिक्योर नहीं है, और मैं डायरेक्टली उसके राउटर से कनेक्ट हो जाऊंगा। आई विल ट्राई टू कनेक्ट डायरेक्टली टू द राउटर, और किसी एक यूजर को टारगेट किए बिना मैं हजारों यूजर्स के डेटा को फैच कर सकता हूँ, स्निफ कर सकता हूँ, मेरा टारगेट अगर कोई कॉमन टारगेट नहीं है तो। और एक होता है एक्टिव स्निफिंग, ये स्विच बेस्ड नेटवर्क पे काम करता है, जहां पे किसी का आपको मैक एड्रेस फ्लड करना है, डीएनएस पॉइजनिंग करना है, एआरपी पॉइजनिंग करना पड़ता है, स्पूफ करना पड़ता है, पोर्ट स्लिंग करना पड़ता है, तो ये इंडिविजुअल सिस्टम्स पे होता है। ठीक है, ये है पैसिव एंड दिस इज एक्टिव। It involves monitoring packets sent by others without sending any additional data packets, which means you just need to connect to the hub or the router or the switch and just wait for the just wait for the discovery of packets. That's it. In here आपको send भी करना पड़ेगा कमांड, रिसीव भी करना पड़ेगा कमांड, और अलग अलग प्रोसेस होता है इसमें। That is passive sniffing and active sniffing. Okay, in the network that use hubs to connect system, all hosts on the network can see the all traffic, and therefore the attacker can easily capture traffic going through the hub, which means even if there are 1,000 users, the attacker will get all the details of all the 1,000 users if they are trying to do something on the internet. In here active sniffing involves injecting address resolution packets, ARP. ठीक है, इसमें क्या होता है ना, स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर सिस्टम का को सिलेक्ट करना पड़ता है, या तो आईपी रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे आप राउटर से कनेक्ट नहीं होते। सो वंस यू डू दैट, एआरपी पॉइजनिंग अटैक होता है, जिसमें कि अगर कोई यूजर जो आईपी एड्रेस सेलेक्ट किया आपने उस नेटवर्क से, अगर वो कहीं साइट पे पासवर्ड डाल रहा है अपना, जीमेल पे, फेसबुक पे, कुछ भी, वो पासवर्ड आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। आई गेस दिस पैसिव स्निफिंग एंड एक्टिव स्निफिंग इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, सो लेट्स ओके, सो दीज आर दी steps, or you can say ways attacker does this sniffing। या तो डायरेक्टली हब्स और स्विचेस से कनेक्ट होकर गेन करते हैं डेटा, या तो वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे किसी बीच के नेटवर्क में, वहां से डेटा गेन करेंगे, या तो सारे यूजर्स को सेलेक्ट करके आईपी सेलेक्ट करके वो करेंगे, या तो मैन इन द मिडल अटैक करेंगे, दो यूजर्स के बीच कनेक्ट होके, ओके, या फिर एक पर्टिकुलर राउटर से कनेक्ट होके एक यूजर को टारगेट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। एंड देन credentials like credit card details, passwords, shopping card details, files, folders, sensitive images, ये सब copy कर लेते हैं। This is how an attacker hacks the network using the sniffers. Okay, we have different tools in the sniffing, which I will let you know in the practical. Look, I'm not only saying कि एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन इंडिया क्या हर जगह आपको पता है कि एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसे मेट्रो स्टेशन, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे मतलब हजारों यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं, करेक्ट, डेली बेसिस पे, उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली बिजनेस ट्रिप पे कोई जा रहा है अगर, तो उनको कुछ काम आया तो दे नो कि उनके पास वाईफाई कनेक्शन है एयरपोर्ट, वो यूज कर सकते हैं रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं भी वाईफाई या नेटवर्क, ऐसा कोई नेटवर्क है, हर जगह ये पॉसिबल है, नॉट ओनली ऑन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, और ये जो मैंने एग्जांपल दिया, कहीं भी पॉसिबल है ये चीज। ठीक है, कोई कोई नेटवर्क सिक्योर होते हैं, सिक्योर इन द सेंस ये नहीं कि कर ना पाए, ये कि डिटेक्ट कर लिया जाए। अगर मैं चाहूँ गूगल के ऑफिस में जाके स्निफ करना, तो गूगल वाले ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे मेरे को, बिकॉज उनके पास वो सिक्योरिटी सिस्टम्स है जो रन हो रहे हैं। बट ऑब्वियसली ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करना नहीं चाहेगा, बट ये ट्राई कहाँ होता है, ओपन नेटवर्क्स, जहाँ पे कोई मॉडरेशन करने वाला नहीं है, नो वन इज एबल टू मॉडरेट दैट नेटवर्क। वही मैंने एग्जांपल दिया एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन के, वहां पे कोई मॉडरेट करने वाला नहीं। ठीक है, साइबर कैफेज, कोई मॉडरेट करने वाला नहीं है वहां पे। सिटी में जो वाईफाई एरिया होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किए होते हैं, कोई वहां मॉडरेट करने वाला नहीं है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, और छोटे मोटे ऑफिस, अगर कोई बड़ा एमएनसी नहीं है, छोटा मोटा ऑफिस ही है, वहां भी कोई मॉडरेट नहीं करता है, उनको बस ब्रॉडबैंड कनेक्ट हो गया, वाईफाई कनेक्टेड है, राउटर का एक्सेस है, दैट्स इट। नो वन इज विलिंग टू मॉडरेट द ट्रैफिक दैट माइट बी, कोई एक एम्प्लॉय डेटा को स्निफ करने का कोशिश जो है वो कर सकता है, बट नो वन मॉडरेट्स दिस। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। नाउ द प्रोटोकॉल्स वल्नरेबल टू स्निफिंग, जब स्निफिंग होता है ओनली लिमिटेड प्रोटोकॉल्स आर वल्नरेबल। अब प्रोटोकॉल क्या है, किसी भी सर्विस, जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो ना, हर एक रिक्वेस्ट का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, ठीक है,
आप मेरा मेरा वॉइस आप तक कैसे पहुंच रहा है? एनीवन? कौन से प्रोटोकॉल पे काम हो रहा है अभी? लेट मी नो. Yes, VoIP, voice over internet protocol. Just like that, for different activities, we have different protocols. वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए होता है? Anyone? To access a website, what protocol do we need? Yeah, HTTP or HTTPS. Anyone? Okay. फाइल्स को अगर सर्वर पे अपलोड करना है डायरेक्टली तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए होता है? FTP. करेक्ट. ठीक है. मेल्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? जब मेल सेंड करते हैं हम जीमेल के थ्रू या कोई भी सर्वर के थ्रू, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? या SMTP, IMAP या तो POP. ओके, दिस वे. सो ऐसे ही ये 6 प्रोटोकॉल्स हैं दैट इज वल्नरेबल टू स्निफिंग. टेलनेट है, rlogin है जो कि रिमोट लॉगिन्स के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. फिर HTTP है, फिर POP है, IMAP है, SMTP है, NNTP है और FTP है. So ये कुछ protocols हैं that we can sniff through the required tools and the softwares. Okay. So once we use a tool, हम लोग ये protocols select करके जो sniffing है वो करेंगे. ठीक है. So let's proceed with the ये जितने भी examples हैं I will explain on, क्योंकि हार्डवेयर बेस्ड प्रोटोकॉल सिंपल सी स्निफिंग होता है कि प्रोटोकॉल्स को एनालाइज करना होता है. सो हार्डवेयर बेस्ड प्रोटोकॉल एनालाइजर टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड एनालाइजर्स होते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर ऑन इन द प्रैक्टिकल. एंड हियर कम्स द पोर्ट. व्हाट इज अ पोर्ट? एनीवन? व्हाट इज अ पोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल? Yeah, a kind of gateway. Yes, for entry exit both. So span port क्या होता है? तो स्निफिंग में स्पैन पोर्ट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बिकॉज जब भी पोर्ट्स के थ्रू डेटा आता जाता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ डेटा हैपेंस थ्रू अ पोर्ट, एंड स्पैन पोर्ट इज अ पोर्ट व्हिच रिसीव्स एवरी कॉपी ऑफ एवरी पैकेट. ये स्पैन पोर्ट जो है, ये देखिए स्पैन पोर्ट, कुछ भी यहाँ पे डेटा आ रहा है जा रहा है, ठीक है, रिसीव हो रहा है, जाना नहीं, रिसीव जो हो रहा है वो स्पैन पोर्ट में आता ही आता है. ठीक है. उसका एक कॉपी आता है स्पैन पोर्ट में. तो हैकर्स यही करते हैं. हैकर्स जो है वो स्पैन पोर्ट पे ज्यादातर स्निफिंग करते हैं, बिकॉज स्पैन पोर्ट रिसीव्स ऑल दी कॉपी, एवरी कॉपी ऑफ ईच एंड एवरी पैकेट जो कि स्विच के थ्रू पास होता है. स्विच क्या हुआ? जिससे सारी यूजर्स जो है वो कनेक्टेड है. ठीक है. तो ये स्पैन पोर्ट हो गया. तो हम लोग को इतना टेक्निकली उसको जानने का जरूरत नहीं है. वी कैन जस्ट सिंपली select the services and we can perform the sniffing activity. Okay. Now wiretapping. How many of you heard about wiretapping? I guess सबने ये सुना होगा wiretapping के बारे में, but फिर भी let me know. Okay, few might not. Okay, किसी किसी को पता है, किसी को नहीं पता है. Okay, wiretapping बेसिकली सिंपल सा चीज है. wiretapping अगर टेलीफोन्स का बात किया जाए या तो इंटरनेट के थ्रू हो रहे कॉन्वर्जेशन के बारे में बात की जाए, तो उसको हम लोग टैप कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के पास बेसिकली एक्सेस होता है, सबके पास नहीं होता है. तो इसमें क्या होता है कि मॉनिटरिंग हो सकता है किसी चीज का, कॉन्वर्जेशन का, जो भी बातचीत हो रही है, ठीक है, चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे वो वॉइस कॉल्स हो, इन सब चीजों को हम लोग टैप कर सकते हैं.
हम लोग मतलब कि जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो टैप कर सकते हैं। यानी कि अभी हम और आप वीओआईपी कॉल पे हैं, तो जूम जो है उसका इंडिया में भी डेटा सर्वर है, यूएस में भी डेटा सर्वर है। अभी जो हम लोग का ये हो रहा है सेशन, ये यूएस बेस्ड सर्वर से हो रहा है। तो यूएस गवर्नमेंट के पास ये परमिशंस होते हैं कि वो अथॉरिटीज होते हैं कि वो लोग कभी भी चाहें तो टैप कर सकते हैं विद द प्रॉपर परमिशन। मतलब एक एक रूल, एक मतलब रीजन रीजन होना चाहिए कि क्या कारण है। ओके, सो वो चाहे तो हमारे इस कॉन्वर्सेशन को टैप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। उसी तरीके से जो टेलीफोन्स होते हैं उसको इंडियन गवर्नमेंट भी टैप कर सकता है, ठीक है। आईएसपीज के कॉल्स को भी टैप कर सकता है गवर्नमेंट। आईएसपी मतलब जो एयरटेल है, वोडाफोन है या जियो है, उनका भी पूरा सर्वर का जो एक्सेस है वो गवर्नमेंट के पास एक रहता है। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो वो चीज कर सकते हैं। ओके, so this is what happens in wiretapping. Okay, now so ये वायर टैपिंग जो है वो लॉफुल इंटरसेप्शन में आता है। अब आप समझ सकते हो कि लॉफुल होता है नहीं होता है, गवर्नमेंट के हाथ में है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। ओके, पिगेसिस वो एक अलग चीज है, पिगेसिस आप अलग बात कर रहे हो, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। पिगेसिस एक अलग ही मॉलवेयर है, ठीक है। तो वायर टैप में आता है लॉफुल इंटरसेप्शन। व्हाट इज लॉफुल इंटरसेप्शन? बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द लीगल अथॉरिटीज, कोर्ट ऑर्डर्स, वायर टैपिंग इज लॉफुली डन। कोई भी आपके कॉल को बिना किसी रीजन के नहीं कर सकता है, ये लॉ है। अब चाहे कर लिया हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सो अगर आप पे कोई इल्जाम लगा हुआ है कि यू आर अ टेररिस्ट, या तो आप एक क्रिमिनल हो, या तो आप कोई एक बहुत ही बड़ा डील कर रहे हो जो कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, बट नो वन इज हैविंग प्रॉपर proof against you, in that case they might tap your calls. For that, lawful interception is needed. So this is, you see, a legal authority, they get a court order to wiretap, then they send it to the service provider like ISPs, then they give access to their switches, routers, servers, storage system, कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम टू दी लीगल अथॉरिटीज। देन वो इजीली वहां से रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं या तो लाइव भी सुन सकते हैं। आप कॉल करोगे उनके पास अलर्ट चल जाएगा कि आप कॉल कर रहे हैं। सो दीज थिंग्स आर जनरली पॉसिबल, ठीक है। अब जो स्निफिंग होता है वो बेसिकली अलग अलग टेक्निक से किया जाता है। एक हो गया मैक अटैक, डीएचसीपी अटैक, पॉइजनिंग अटैक, डीएनएस पॉइजनिंग अटैक और अलग अलग अटैक्स। तो सब अटैक का अलग अलग आउटकम होता है, ठीक है। तो हम जो है डिस्कस करेंगे एआरपी पॉइजनिंग के बारे में, बिकॉज आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गैदर द इंफॉर्मेशन from the victim's computer system or the network, like passwords, information, sensitive credentials and everything. Okay, but we need to discuss about all kind of attacks like MAC attacks. So how many of you know about MAC address? Anyone? MAC address? Yes. So yes, a kind of, you can say, machine address. Yes, a physical address of the device. Correct. So no, it's MAC means like it's a kind of physical address of a particular device. You can say an adapter. आपके लैपटॉप में कोई ना कोई अडेप्टर तो होगा ही जिसके हेल्प से आप इंटरनेट से यूज करते हो। कुछ वायरलेस अडेप्टर्स होते हैं, कुछ इथरनेट अडेप्टर्स होते हैं, और कोई कोई एक मिक्स होता है सबका जो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो उस एक अडेप्टर का एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। सो मैक एड्रेस स्निफिंग में जितने भी इंफॉर्मेशन है आपके नेटवर्क से लेके आपके इंफॉर्मेशन जितने भी आप चीजें कर रहे हो इंटरनेट पे, वो सारे के सारे मैक एड्रेस से प्रोसेस होते हैं। दैट इज क्लियर टू एवरीवन। सो वो जो है वो एक टेबल में स्टोर होता है जिसको कहते हैं हम लोग कैम टेबल, ठीक है।
तो अब उसको अगर हम स्निफ कर ले तो हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है हमको वो मिल सकते हैं. आई विल शो यू हाउ मैक एड्रेस स्निफिंग है जो काम करता है, हाउ मैक एड्रेस स्निफिंग वर्क्स. ओके, एक प्रैक्टिकल में शो करूंगा मैं. देन वी हैव दिस मैक फ्लडिंग. पूरे मैक को फ्लड यही होता है कि जो सिस्टम है वो फ्लड हो जाता है, स्लो हो जाएगा, काम नहीं करेगा और हमको इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगा. सो दिस कॉन्सेप्ट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. देन वी हैव स्विच पोर्ट स्टीलिंग. पोर्ट से स्टील करना मैक फ्लडिंग के हेल्प से डेटा को. लाइक अटैकर फ्लड्स दिस स्विच विद दी फॉर्ज्ड ARP पैकेट्स विद टारगेट मैक एड्रेस एज सोर्स एज इज हर ओन मैक एड्रेस एज डेस्टिनेशन. मतलब कि मैक एड्रेस जब फ्लड करते हैं हम लोग और जब मैक एड्रेस के सारे डिटेल्स हमारे पास आ जाते हैं, सपोज मैंने मैक एड्रेस फ्लड किया तो बस मैक एड्रेस का सारी डिटेल्स आ गया अलग अलग यूजर्स का, मैं वही डेटा यूज करूंगा फ्लड करने के लिए और एक पर्टिकुलर पोर्ट पे भेजने के लिए. ठीक है, ताकि लगे कि वो रियल इंफॉर्मेशन है, रियल डेटा है, बट वो है नहीं. सपोज कि मैंने आपका मैक डिटेल्स फ्लड कर दिया और उसको मैंने स्टील कर लिया. अब मैं भेजूंगा उसको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे और वेट करूंगा कि मुझे रिप्लाई मिले जो कि आपको मिलना चाहिए था. ठीक है, दिस इज हाउ इट हैपेंस. जस्ट अ मिनट. What is Mac? Okay, so when you are still having confusion on Mac, okay, just wait. Okay, so MAC address. So MAC address basically stands for Media Access Control Address. ठीक है, Media Access Control. It's a kind of unique network interface address. ये एक हेक्साडेसिमल काइंड का एड्रेस होता है जो कि एक नेटवर्क को दिया जाता है. जैसे कि आपके लैपटॉप में आपके पास कुछ अडेप्टर्स होंगे, बिना अडेप्टर के आप नेट से कनेक्ट नहीं हो सकते हो. जैसे कि मेरा जो है मैक का अडेप्टर जो है वो एप्पल का ही होता है, विंडोज में इंटेल का होता है, अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं. जैसे कि बहुत से एग्जांपल्स हैं, मतलब अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं. सब अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप में अलग अलग ब्रांड्स के अडाप्टर्स लगते हैं. उन सब अडाप्टर का एक मैक एड्रेस जरूरी होता है. ठीक है, जो कि फिजिकल एड्रेस को डिफाइन करता है. ठीक है, अगर कोई हाई एक्टिविटी होती है तो बेसिकली आईपी एड्रेस को ट्रैक ना करके मैक एड्रेस को ट्रैक किया जाता है. बिकॉज आईपी एड्रेस जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है बट मैक एड्रेस नहीं. ठीक है, मतलब चेंज कर सकते हैं मैक एड्रेस बट वो जनरली लोग करते नहीं है. अगर आप मैक एड्रेस चेंज कर दो कि आपका आपका जो वारंटी है लैपटॉप का वो चल जाएगा. ठीक है, so these things you need to be sure of. So MAC address is a kind of unique address of a network interface controller, जो कि आपका अडेप्टर हो गया आपके केस में. इथरनेट का अडेप्टर, वाईफाई का अडेप्टर, ब्लूटूथ का अडेप्टर, सबका अलग अलग मैक एड्रेस होता है. Okay, so these things I will show you once in a practical that how port stealing works, how MAC flooding works, how MAC spoofing works. आप कैसे मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हो. So these things I will uh, explain you and how you can protect against MAC stealing. ठीक है, now let's proceed. Yes, phone has also MAC address. सबका होता है, हर एक डिवाइस का MAC एड्रेस होता है. आप में से कितने लोगों ने रेस्पबेरी पाई का नाम सुना है? रेस्पबेरी पाई.
Okay, so Raspberry Pi is a kind of small, you can say machine kind of thing. वो एक छोटा सा motherboard पे configured एक device है that is very small in size. Let me show you in on Google. ये कुछ ऐसा दिखता है. ये एक अपने आप में एक कंप्यूटर है. ये आप समझ सकते हो, अपने आप में एक कंप्यूटर है ये. सो इसको देखते हैं. तो ये एक मदरबोर्ड है. इसमें पेन ड्राइव के चिप्स हैं, इथरनेट केबल के लिए है, ऑडियो आउटपुट के लिए है, वीजीए के लिए है. ठीक है. तो ये जो चीज है, ये एक रेस्पबेरी पाई इसको कहा जाता है, स्मॉल स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. सो इसका भी एक मैक एड्रेस होता है बिकॉज इसमें एक इथरनेट केबल है. तो इसी तरीके से सारे डिवाइसेस का एक इथरनेट केबल जो है वो होता है. ओके. सो लेट्स डू वन थिंग. हम हर एक प्रोटोकॉल के बारे में, जैसे मैक, DHCP, इसके बारे में एक हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगला टॉपिक जो है ये अभी मैंने बता ही दिया. ARP स्पूफिंग क्या होता है, पॉइजनिंग. मैक एड्रेस चेंज करना, डुप्लीकेट करना, दैट आई विल एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डायरेक्टली. ओके. सो या दीज आर द ओनली थिंग्स. सो ये जो अब आगे की जो टेक्निकल चीजें हैं इसको हम सीधे प्रैक्टिकल में देखते हैं. ठीक है. कि मैक एड्रेस फ्लड कैसे किया जाता है, मैक एड्रेस स्पूफ कैसे किया जाता है, मैक एड्रेस चेंज कैसे करते हैं, DHCP अटैक कैसे करेंगे, DNS को स्पूफ कैसे करेंगे, और और कुछ चीजें हैं जैसे कि VoIP स्पूफिंग वगैरह. तो VoIP स्पूफिंग तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, बट उसका एक ओवरव्यू दूंगा मैं. ओके. सो टूल जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं. जैसे कि वायरशार्क का जरूरत होगा हम लोग को पैसिव स्निफिंग करने के लिए. ठीक है. वायरशार्क के बाद हम लोग यूज करेंगे KNenable का. तो KNenable बहुत ही पॉपुलर टूल है जो कि ARP पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है. दैट विल यूज. देन वी यूज स्टील सेंट्रल पैकेट एनालाइजर टूल, कैप्सा नेटवर्क एनालाइजर टूल. ये पैकेट्स को स्निफ करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. ओमनीपीक का यूज करेंगे हम लोग. और उसी में एक टूल है KNenable जिसका इसमें नाम लगता है मेंशन नहीं किया है. नो वरीज. तो हाँ, कोला सॉफ्ट भी है इसका. तो ये कुछ टूल्स है जिसके हेल्प से जितने भी मेंशन टेक्निक्स थे, मैक स्पूफिंग, मैक फ्लडिंग, DHCP, DNS, ये सारी चीजें जो है हम इन टूल्स के हेल्प से करेंगे. कुछ टूल्स जो मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है, बट आई डोंट रिकमेंड टू यूज द मोबाइल वन बिकॉज वो जनरली सक्सेसफुल नहीं होता है. So that's it for the sniffing, everyone. So next session tomorrow we'll be doing the practical, and if you have any questions you can ask. Sniffing का जो concept है, I hope it is clear to everyone. Okay, so if you have some out of syllabus question about some software and all, you can just ask me in the Telegram. Okay, few of you having some question on the bug bounty. Okay, just ping me on the same Telegram or the WhatsApp. We'll look into that. We'll start that soon. It can be done on all the devices, networks, interfaces, everything. It's all about the technique. Okay, so that's it for today's session, everyone. I hope you liked it. You can now leave the class. The recording will be uploaded as soon as possible. You can now leave the session. Have a good day. Bye, everyone.